activity, the best performer of the year 2011-12 goes to Sumit Parekh from Mahavir Public School. He is a dedicated judo student who is a blend of agility, control and discipline. The second activity is the aerobics. Best performer being Priyanshi Bangia of class 6th of Mahavir Public School. She performs the various aerobics exercises with affinity and ease. In the roller skating activity, the best performer award goes to none other than Raghav Khandelwal of class 9 of Mahavir Public School. He is a skating wonder and his name is in Limca Book of Records for 50 hours of continuous skating in Belagaum, Karnataka. I now call upon Sarvagya Mishra of class 8 of Mahavir Public School. He is adjudged as the best performer in the instrumental music activity. Agnish Sharma. I now call upon the best performer of the gymnastics activity, Aman Singh of class 7th of Mahavir Public School. We have just witnessed his spectacular work of somersaults, backlifts, performing all the gymnastics skills with ease and grace. This award will surely boost his self-confidence. I request the august gathering to please applaud for him. Nishtha Gurana of class 7th of Mahavir Public School is a maths wizard. She has clear concepts of maths and is very good at fast maths calculation. She has been chosen the award of the best performer of the abacus activity, having cleared all the 10 levels of abacus, scoring 100% average. In the vocal music Hindi activity, श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के 11वीं कक्षा के विद्यार्थी बादल पारेख। इन्होंने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर विद्यालय का परचम फहराया है। Now the best performer award in the vocal music English goes to Ritu Lakhotia of class 9 of Mahavir Public School. She is an all-rounder. She not only enjoys this activity but remembers the lyrics of all the top songs. Hitat Purohit, the best performer for this budding Picasso. Best performer in the dance activity goes to Karishma Jain of class 10th of Sri Mahavir. She has the creative skills to be a choreographer too. Ms. Dimple Rajawat of class 12th of Sri Mahavir Digambar Jain High Secondary Schools receives the Best Performance Award in the Spoken English activity. A Hindi medium schooling background has never been a limitation in her spoken skills and fluency. यज्ञेश पाठक को, जो श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र हैं, अपनी प्रभावशाली आवाज band for many years. Under her leadership, this band has won many accolades and awards in the city. I thank our chief दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री N.K. सेठी सर, मानद मंत्री श्री R.K. काला सर, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, भाइयों व बहनों, विद्यालय परिवार जिसमें आज तीनों की तरफ से ही महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर पब्लिक स्कूल एवं महावीर कॉलेज ऑफ कॉमर्स सभी के सदस्यगण, मेरे बड़े भ्राता माननीय न्यायाधिपति श्री नगेंद्र कुमार जी जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक व मद्रास हाईकोर्ट व पूर्व चेयरमैन राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि
भारत का राष्ट्रीय पर्व की सालगिरह राष्ट्र संत के सानिध्य में मनाई जा रही है। मैं आज के इस मौके पर भारत की आजादी की सालगिरह के लिए आप सभी को, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। भारत का इतिहास साक्षी है कि इंग्लैंड की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के नाम पर इंडिया में प्रवेश किया। धीरे धीरे उसने भारतीयों को आपस में लड़ाकर लगभग 200 साल तक शासन किया, जिसकी आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरुआत की। भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों जो आज मौजूद नहीं है और कई मौजूद भी है, उन सबने काफी मेहनत की, कोशिश की, रात दिन इसी प्रयास में लगे रहे कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की आजादी मिले। अंततः यह सपना साकार हुआ 14 व 15 अगस्त के दरमियानी रात को। 14 व 15 अगस्त की दरमियानी रात 1947 को, जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान को आजाद डिक्लेयर किया। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इंडिपेंडेंस डे के रूप में राष्ट्र संत गणाचार्य विराट सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आजादी मिली है और जिसके पीछे जिन शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी की है, आज उन सबको याद करने का व श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज बहुत खुशी का दिन है और साथ में यह भी याद रखने का दिन है कि किस प्रकार से हमको आज़ादी मिली और उस आज़ादी का फायदा हम स्वयं आकलन करें कि हमने कितना उठाया, कितना नहीं उठाया, कितना खोया, कितना पाना है। यह सब अपने अपने विचारों पे डिपेंड करता है। भारत के आजाद होने के बाद में ऐसा महसूस किया गया कि भारत का एक लिखित संविधान होना चाहिए। इसलिए संविधान कमेटी का गठन किया गया। उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और उसकी तारीख 26 जनवरी 1950 से रखी गई। 26 नवंबर को हम हर साल लॉ डे के रूप में, कानून दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय झंडे के रूप में हमने तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। नेशनल एंथम
जन गण मन जो आपने भी सुना, जो राष्ट्रीय गान है, जिसका आदर करने की, स्वीकार करने की हर भारतीय नागरिक की ड्यूटी है, उसको हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। और राष्ट्रीय गीत के रूप में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, जिसको भी आपने सुना, उसको भी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। इस प्रकार से राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत हमारे स्वीकार किए हुए हैं। और आज राष्ट्रीय पर्व के रूप के उपलक्ष्य में आज उन सभी को गाया जाता है और ये सब नेशनलहुड के सिंबल के रूप में जाने भी जाते हैं। भारतीय संसद ने हमको संविधान तो दिया, संविधान के अंदर मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स भी दिए, जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक हैं। सभी को समानता का अधिकार, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, लिबर्टी, लाइफ, जिसके अंदर अब आजकल स्वास्थ्य, एजुकेशन सब शामिल हैं। शिक्षा के अधिकार को भी अब आर्टिकल 21(1) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। हर आदमी आज खुशी है कि अपने संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को के प्रति सजग है। थोड़ा सा भी यदि सरकार में आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन पेश कर अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए निवेदन करता है, और आज आपको पता है, अखबार उसमें आप सब पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा है, उसकी रक्षा की है। आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार व हिंदुस्तान की स्टेट्स के सभी सरकारों को समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उसको फॉलो करने के लिए कंपेल किया है। भारत के संविधान के खिलाफ यदि किसी प्रकार से कानून नियम बनाया है तो उसको असंवैधानिक भी डिक्लेयर किया है। भारत के संविधान के अंदर यह प्रावधान रखा गया है कि कोई भी कानून, चाहे भारत सरकार, चाहे भारत के अंदर जितनी भी स्टेट्स की असेंबलीज हैं, वो कोई भी संविधान के खिलाफ कानून नहीं बना सकती, कोई भी नियम नहीं बना सकती, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती, और यदि करती है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दे देती है। इसी प्रकार से एक यह भी नियम प्रावधान इसमें रखा गया है कि यदि संविधान की किसी भी अनुच्छेद के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है, इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है, व्याख्या का सवाल आता है, तो उस बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। वह भारत सरकार, संसद, वह सभी सरकारों पर मान्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान भारत के संविधान में दिया है। आज भारत के संविधान के तहत दिए गए अधिकारों की वजह से ही आज हम हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, खुली हवा ले सकते हैं। मैंने अब तक आपको अपने अधिकारों के प्रति, सजगता के प्रति बताया, लेकिन आज के दिन मैं सभी नागरिकों से, विशेष रूप से बच्चों से, छात्राओं से, सभी से ये कहूंगा कि उसी संविधान के अंदर जिसने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, उसी संविधान के अंदर एक आर्टिकल 51(a) है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में जोड़ा गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो पार्ट 4A भाग 4A के तहत 3 जनवरी 1977 से जोड़ा गया है। उसके तहत हर व्यक्ति की
यह ड्यूटी है कि वह संविधान का आदर करे, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करे, देश की भारत की एकता अखंडता प्रभुत्व की एक वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करे, राष्ट्र की सेवा करे, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का एवं धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का त्याग करे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, भारत देश पाए निरंतर, भारत देश पाए निरंतर, सुख शांति का वरदान हो। हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, कोई दुखी हो दुख हमें ले ले, रोगी को करे निरोग, कोई दुखी हो दुख हमें ले ले, रोगी को करे निरोग, सारी वसुधा अपना घर है, अपने सारे लोग, सारी वसुधा अपना घर है, अपने सारे लोग, सन्मति पथ पे आए सभी, सन्मति पथ पे आए सभी, सबका ही कल्याण हो। हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, हे वर्धिमान, समय समय पर हो सुवृष्टि, कहीं ना होए अकाल, समय समय पर हो सुवृष्टि, कहीं ना होए अकाल, अनुशासन भाईचारा हो, सब पहने गुणगान, अनुशासन भाईचारा हो, सब पहने गुणगान, सबके मन को पावन करता, सबके मन को पावन करता, जिन वाणी का ज्ञान हो। हे वर्धिमान, हे वर्धिमान,
आचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराट सागर जी महाराज की संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रियसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः ये ध्यानशीलः मुनयः प्रमाणा ते दुःखहीना नियमान् भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मितत्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हमें गर्व है कि हमने भारत देश में जन्म लिया, और वह इसलिए कि इस धरती पर तीर्थंकर ऋषभदेव ने जन्म लिया, इस धरती पर भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया, और इस धरती के लिए समय समय पर अपने तप, त्याग और साधना से सींचा है। इस धरती के लिए तप, त्याग और साधना से सींचा है। जगह जगह जा जा करके मानवीयता के पाठ पढ़ाए हैं, और आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इस देश के विषय में ही कामना की है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवत जिनेन्द्रः। हे जिनेन्द्र भगवान, हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरा राज्य नगर के लिए, राजा के लिए और प्रजा के लिए, हर प्राणी के लिए शांति प्रदान कीजिए। एक प्रार्थना की है कि शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, इस सारी मुल्क के लिए आनंद से भर दीजिए, और यहाँ के प्राणियों के हर कष्ट दूर कर दीजिए। बंधो, संत एक ऐसी भूमिका में होते हैं जो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। संत किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, और ना संतों की कोई पार्टी होती है, इसलिए वे समग्र भारत के होते हैं, समग्र देशवासियों के होते हैं। वे निरंतर इस धरती के विकास और उन्नति की कामना में रहते हैं। यही कारण है कि हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा एक शांति प्रिय देश माना गया। देश में जो अन्य देशों में पैसा हो सकता है,
धन हो सकता है, दौलत हो सकते हैं, लेकिन शांति उतनी नहीं है जितनी कि भारत देश में शांति है। जितनी कि भारत देश में शांति है। बतलाते हैं, जब भारत देश से यहाँ के इंस्पेक्टर लीडर राकेश शर्मा सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्रा के लिए निकले और जब वे अंतरिक्ष में पहुंच गए तो उनकी यहाँ की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात हुई और गांधी ने उनसे सबसे पहला एक प्रश्न किया कि आपके लिए आपकी यात्रा कैसी है। उन्होंने जवाब दिया, यात्रा हमारी सुखद है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से भारत की छवि कैसी दिख रही है। तो उस समय राकेश शर्मा ने सबसे पहले यही कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह उन्होंने बड़े गौरव के साथ कहा था कि अंतरिक्ष से भी जब हम भारत को देखते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे न्यारा हमें अपना भारत देश दिखता है। बंधुओं, भारत देश के लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने भी बहुत प्रकार से इसके लिए ऐसा सींचा कि हमारे देश के लिए एक वह सम्मान दिया गया कि भारत देश के लिए केवल भारत देश के रूप में नहीं, हमारे देश के लिए भारत माता के रूप में पुकारा गया। भारत माता का आदर दिया गया, भारत माता की तरह सम्मान दिया गया। केवल विश्व के समस्त देशों में एकमात्र भारत देश ऐसा है जिसके लिए माता के रूप में पुकारा गया और ऐसा विश्व का एक भी देश नहीं है जिसके लिए माता का सम्मान दिया गया हो। बतलाओ, क्या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान माता कहा जाता? क्या अमेरिका के लिए अमेरिका माता कहा जाता? क्या जापान के लिए जापान माता कहा गया? क्या रूस के लिए रूस माता कहा गया? कहीं नहीं कहा गया। एकमात्र भारत देश के लिए, एकमात्र केवल भारत देश के लिए भारत माता का दर्जा दिया गया, एक मां की तरह माना गया है और माता की तरह आदर और सम्मान दिया गया है। बंधुओं, हमें इस बात का गर्व है कि हमारे इस देश के लिए समय समय पर जो हमारे महापुरुषों ने सींचा है, तो एक सदाचार से सींचा है, एक नैतिकता से सींचा है, एक व्यवहारता से सीखा है कि हम भारतवासी रहें तो कैसे रहें, चलें तो कैसे चलें, खाएं तो कैसे खाएं और बोलें तो कैसे बोलें। सभी में मिठास होना चाहिए, सभी में मीठापन होना चाहिए। यह संस्कृति देने वाले केवल हमारी धरती के ही महापुरुष रहे हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, चाहे वह किसी भी संस्कृति के हो, चाहे वह किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी प्रांत, किसी भी देश के हो, किसी भी प्रांतीय भाषा के हो, लेकिन सभी ने हमारे देश को विकसित करने में अपना अपना बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। इसलिए बंधुओं, हमारे लिए इस बात का गर्व है कि इस कारण से देश ने बहुत ऊंचाइयां पाई और एक समय ऐसा आया कि देश के लिए सोने की चिड़िया के रूप में समझा गया, माना गया। हमारे देश के लिए घी, दूध की नदियां बहाने वाला देश माना गया है। बंधुओं, यह बात अलग है कि समय बदलता गया और रियासतियों में विभिन्न प्रकार की विकृतियां प्रारंभ हो गई। सबसे बड़ी विकृतियां हमारे देश के राजाओं में आई थी
वह नशाखोरी की आई थी, और जिस कारण से जनता त्राहिमाम होने लगे। आप विदेशियों ने अपना धीरे धीरे कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया था। नशा ने हमारे लिए, केवल नशा ने देश के लिए पराधीन किया था, और जब देश मुक्त हुआ तो बंधुओं, केवल नशा मुक्ति के कारण हमारा देश एक आजादी को प्राप्त हुआ है। हमारा देश एक आजादी को प्राप्त हुआ। काश यदि देश के नेता नशा व्यसन में आसक्त होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारा देश कभी आजादी पा सकता था। गांधी जी का एक सबसे बड़ा स्वप्न था कि नशा का पीछे छिपा हुआ केवल अज्ञानता थी, और उन्होंने स्वप्न देखा था कि हर गांव-गांव में, हर नगर-नगर में उन्होंने स्कूल की कल्पना की थी। हर नगर-नगर में स्कूल देखना चाहते हैं, और बंधुओं, आज उनकी कल्पना सार्थक हो गई। संभवतः आज काफी प्रतिशत में हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया है। ज्ञान के क्षेत्रों में नाना प्रकार के आर्थिक दृष्टिकोण से और भी कल कारखाने की दृष्टिकोण से काफी मात्रा में विकास किया है। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से भी आगे बढ़ा, लेकिन बंधुओं, आज समय व्यतीत होता गया और पुनः वह पाश्चात्य संस्कृतियों ने हमारे ऊपर फिर असर डालना प्रारंभ किया। हमें इस ओर भी देखना आवश्यक है। हमें इस ओर भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा देश अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, अपने वेशभूषा पर गर्व करता है, जो हमारी भाषा पर गर्व करता है, आज भारतीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी भाषा है वह धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। इंग्लिश और अंग्रेजी का विकास होना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। अन्य देशों के साथ संपर्क और वहां के विकास में हमारे कदम भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें इस दिशा में भी ध्यान रखना होगा कि हमारी भारतीय भाषा, हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा कहीं अन्य भाषाओं की अपेक्षा बौनी ना पड़ जाए, और बौनी क्या, सनई सनई यह समाप्ति की कगार पर ना आ जाए। ऐसा ना हो कि हमें इसके विषय में फिर अन्य स्कूलों में पढ़ने की आवश्यकता पड़े। बतलाते हैं, महात्मा गांधी जब बैरिस्टरी करके अपने देश में वापस लौटे तो एक बार कोई दार्शनिक उनसे मिलने के लिए जब आया तो उसने भारत में आकर के केवल 6 माह तक हिंदी भाषा सीखी थी। केवल 6 माह तक हिंदी भाषा इसलिए सीखी थी क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय हैं और यहाँ की भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हम उनसे बात करेंगे तो वे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वे हमसे हिंदी में बात करेंगे। और जब उसने 6 माह हिंदी भाषा सीखी और जब वो 6 माह के बाद महात्मा गांधी के सन्मुख उपस्थित हुए तो उसने जो भी प्रश्न किए वह सारे प्रश्न हिंदी में किए, जो भी प्रश्न किए हिंदी में किए। लेकिन महात्मा गांधी ने जितने भी उत्तर दिए वे सारे के सारे उत्तर इंग्लिश में दिए थे, सारे उत्तर अंग्रेजी में दिए थे। तो उस विदेशी के लिए सबसे बड़ा दुख हुआ था और गांधी जी से कहा था कि मैंने 6 महीने हिंदी सीखने में व्यर्थ में समय गमाया, यदि इतना मालूम होता तो मैं हिंदी कभी नहीं सीखता। बंधुओं, यह बात महात्मा गांधी के हृदय पर इतना असर डाल करके गई, इतना प्रभाव डाल करके गई कि उन्होंने यह दृढ़ संकल्प ले लिया था
यह प्रतिज्ञा ली थी कि हिंदी भाषा के लिए हम सारे देश की और सारे राष्ट्र की भाषा बनाएंगे। और उन्होंने उस दिन से अधिकांशतः अपने भाषण केवल हिंदी में दिए थे, क्योंकि और उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदी भाषा पर बहुत बड़ा गर्व है। यह हमारे राष्ट्रीय भाषा है, हमारे देश की भाषा है। बंधुओं, आज केवल भाषा ने हमारी संस्कृतियों पर भी असर डाला है। प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, आश्रमों में भी दी जाती थी, और अनेक अनेक ऋषि मुनि प्रायः शिक्षा दिया करते थे। ऐसा पुराण और इतिहास के पन्नों में पढ़ने में मिलता है। चाहे भगवान राम का बाल्य जीवन हो अथवा नारायण श्री कृष्ण का बाल्य जीवन हो, जब हम उनके इतिहास को देखते हैं तो सभी ने आश्रमों में जाकर के अध्ययन किया। आश्रमी शिक्षा और आज वर्तमान की शिक्षा में इतना अंतर आ गया कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा के पीछे सबसे पहले नैतिकता का पाठ हुआ करता था, सदाचार का और सभ्यता का पाठ हुआ करता था। बंधुओं, आज वह सदाचार, वह सभ्यता, वह नैतिकता सनई सनई समाप्त होती चली जा रही है और केवल आजीविका की ही भूमिका रह गई। यह संभव है, आज की शिक्षा वह अच्छी डिग्री दे सकती है, बहुत ऊंची सर्विस दे सकती है, अच्छा ऊंचा वेतन दिला सकती है, लेकिन बंधुओं वह शांति नहीं दिला सकती है। पैसा वह बहुत ऊंचे बंगले दे सकता है, पैसा बहुत अच्छी कार और मोटर दे सकता है, लेकिन शांति और आनंद नहीं दे सकता है। हम देखते हैं बड़े बड़े पैसे वाले भी, जब हम उनको देखते हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है। उसका कारण केवल एक हमारे जीवन में सदाचार और नैतिकता का अभाव है। हम यदि किसी बच्चे से जब पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, जब उससे हम पूछते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वह डायरेक्ट सीधा कह देता है राम किशन, कोई कह देता है महावीर, राम किशन। जब यह शब्द सुनते हैं, महावीर, जब यह नाम सुनते हैं तो लगता है कि राम किशन कौन थे? क्या तुम्हारे दोस्त थे? क्या तुम्हारे बेटे थे? क्या तुम्हारे पड़ोसी थे? आखिर में कौन थे? पुराने समय में शिक्षा के सबसे पहले आयाम सदाचार के थे, नैतिकता, आदर और सम्मान के थे। यदि हम उस समय किसी से पूछते थे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो बंदा बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ अनेकों विशेषणों को जोड़ करके वह अपने पिता का नाम लिया करता था। श्री और श्रीमान की परंपरा थी, जी नाम के पीछे जी लगाने की परंपरा थी। आज ना तो श्री दिखता है और ना श्रीमान नजर आता है और ना कहीं जी नजर आता है। यहाँ तक ही क्या, बच्चों के टीचर्स जितने भी होते हैं, यदि हम किसी विद्यार्थी से उनके टीचर का नाम पूछते हैं कि तुम्हारे स्कूल के टीचर का नाम क्या है, बच्चे बिल्कुल सीधा नाम लेते हैं। वहां पर भी श्री और श्रीमान या जी यह लगा हुआ नहीं देखते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी आदर शिक्षा में जो नैतिकता का पाठ है अथवा जो नैतिकता का मूल्यांकन था, वह सनई सनई इतना घटता जा रहा है कि आज केवल माननीय रह गया है और वह माननीय केवल मिनिस्ट्रों में रह गया है। और अब तो मुझे चिंता है इस बात की कि कालांतर में यह माननीय शब्द भी ना चला जाए।
अब मुझे इस बात की चिंता है कहीं वहां से भी ये शब्द नदारत ना हो जाए। पुराने समय में पिताजी बोला जाता था, अपनी माता के लिए माता या जननी बोला जाता था, लेकिन वह माता का दर्जा मम्मी के रूप में बदल गया और वह मम्मी जो है वह सनई सनई माम बन गई, वह मम्मी माम बन गई। और अब मुझे इस बात की चिंता है कहीं वह मम्मी आने वाले कल में कहीं मम्मी ना बन जाए। मुझे इस बात की चिंता है कि वह मम्मी जो है कालांतर में मम्मी ना बन जाए। पिताजी जो थे वह डैडी बने, पिताजी डैडी बने और अब तो पूरे डेड हो चुके हैं, पिता डेड हो चुके हैं, मम्मी की कहीं मम्मी ना बन जाए। इस बात की मुझे बहुत चिंता है कि हमारी संस्कृतियां किस प्रकार से बदल रही हैं। हमें समझना पड़ेगा, समय आने पर हमारे लिए सावधान होना पड़ेगा और इस दिशा में भी एक बार मुड़ करके देखना पड़ेगा कि हमारी स्थिति आखिर में कितनी बदलती जा रही है। जिस देश के लिए हम शांति प्रिय और आनंददायी देश मानते थे, शायद जैसे केवल रत्न और जवाहरात आदि से के निर्यात जिस देश से होते थे, आज वह देश केवल मांस और चमड़े का निर्याती देश माना जाता है और यहाँ से पशु धन जो है वह सनई सनई लुप्त होता जा रहा है। जहाँ देश के लिए पशुओं के कारण धनवान देश माना जाता था, लेकिन बंधुओं आज वह सनई सनई स्थितियां इतनी गिरती जा रही है कि हमारे देश में देश स्वतंत्र होने के समय लगभग केवल मात्र 3600 या 3700 केवल कत्ल खाने थे, नहीं 350 लगभग कत्ले खाने थे, मात्र 350 कत्ले खाने थे। आज हमारे देश में करीब 37,000 कत्ल खाने हो गए हैं, जिनमें 2.5 लाख करीब पशुधन प्रतिदिन हनन किया जाता है। बंधो जहां पर घी दूध की नदियां बहती थी, अब आगे चिंता है कि आज जहां पर खून की नदियां बह रही हैं, आगे के समय में तो यह देश घी के लिए तरसेगा अथवा दूध के लिए तरसेगा। यदि हमने कुछ ब्रेक ना लगाए, कंट्रोल ना किया, इस ओर विचार ना किया, तो जिस प्रकार से अन्य पदार्थ हम अन्य देशों से निर्यात करते हैं अथवा वहां से मंगाते हैं, बंधो शायद आने वाला कल ऐसा भी होगा कि घी दूध आदि हमारे लिए विदेशों से मंगाना पड़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस में हमें जितना गौरव और जो गर्व है अपनी आजादी का, और इस बात का भी हमें दर्द है कि जिस स्वतंत्रता को पाने के लिए अनेक शहीदों ने अपना खून बहाया है, केवल इस देश के सुख और चैन के लिए, शांति और आनंद के लिए, कहीं वह सुख और शांति दूसरी ओर से हमारी समाप्त ना हो जाए। हमें इन सब के विषय में बंधो सोचना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति इतनी विचित्र होती जा रही है। हम निरंतर एक स्वप्न देखते हैं, हम निरंतर कल्पना करते हैं कि हमारा देश का हर बच्चा हमारे देश की ताकत बने, हमारे देश का हर बच्चा हमारे देश की शक्ति बने, हमारे देश का एक विकास का रूप धारण करे। हम एक स्वप्न देखते हैं। माता पिता जब अपने बच्चे के लिए स्कूल भेजती हैं, और जब स्कूल भेजती हैं तो वह भी इस बात का
स्वप्न देखती हैं कि मेरा बेटा बहुत बड़ी तरक्की करेगा, हमारा बेटा बहुत बड़ी उन्नति करेगा, हमारा बेटा बहुत बड़ा अपने परिवार का, नगर का, देश का और राष्ट्र का उत्थान करेगा। किंतु बंधुओं, शिक्षा के क्षेत्र में हमको देखना पड़ेगा कि हमको और कितनी मेहनत करना आवश्यक है। बतलाते हैं कि हमारे देश के आर नारायण एक बहुत अच्छे नेता हुए हैं और जब वे अपनी छोटी उम्र में थे तो वे हुबली के जैन स्कूल में पढ़ने आया करते थे और अपने गांव से लगभग 16 किलोमीटर केवल साइकिल से पढ़ने जाते थे। बतलाते हैं कि एक बार वे किसी कारण से स्कूल में 10 मिनट लेट हो गए और क्लास प्रारंभ हो गई। जब क्लास प्रारंभ हो गई तो क्लास टीचर ने उन्हें अपनी क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। अपनी क्लास से बाहर इसलिए खड़ा कर दिया कि आज आप 10 मिनट लेट आए हैं। लेकिन के.आर. नारायण उन्होंने जरा भी इसमें अफसोस प्रकट नहीं किया। बाहर खड़े होने के लिए वे सहसा तैयार हो गए और उन्होंने कहा, गलती की सजा मिलना ही चाहिए और मुझे सजा स्वीकार है। वे क्लास के बाहर भी बैठ करके अपने सब्जेक्ट को इतना ध्यान से पढ़ते हैं, इतना ध्यान से सुनते हैं कि स्कूल के टीचर ने अपना जो भी उनका कोर्स सबक था उसके लिए विधिवत पूरा पढ़ाया और पढ़ाने के उपरांत स्कूल के छात्रों से पूछा, बच्चों से पूछा और एक सबक पूछा जो उसी समय उन्होंने पढ़ाया था। कोई भी छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाया। तो स्कूल के बाहर बैठे हुए के.आर. नारायण ने कहा, सर यदि आपकी आज्ञा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूं। और उनके सर ने जब उस बच्चे के लिए खड़ा किया और उससे पूछा कि हाँ आप भी आंसर दे सकते हैं, और बंदो उसने सही उत्तर दे दिया। यह जब सही उत्तर दिया तो उनके स्कूल के टीचर ने उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, कालांतर में ऐसे बच्चे हमारे देश के बहुत बड़े एक आदर्श बनेंगे, हमारे देश की बहुत बड़ी शक्ति बनेंगे और वे ही के.आर. नारायण हमारे देश के बहुत अच्छे नेता हुए। सूर्यकांत निराला के विषय में बतलाते हैं कि सूर्यकांत निराला अपने स्कूल में निरंतर अध्ययन करते पढ़ते। एक दिन एक घटना घट गई और वह यह स्कूल के बच्चों ने कुछ शरारती कर दी, आवाज कर दी, ऊधम मचा दिया। और जब यह ऊधम मचाया, टीचर उस समय उनके कहीं क्लास से बाहर गए। इतने समय में उनका शोरगुल सुन करके वे वापिस लौट आए और जब वापिस लौट करके आए तो उन्होंने पूछा कि कौन से विद्यार्थी ने शरारती की थी। तो सूर्यकांत निराला सबसे आगे आ गए। उन्होंने कहा, सर मैंने शरारती की थी, दंड मुझे दिया जाए। उन्हें सूर्यकांत निराला के लिए उनके लिए दंड दिया गया कि आपके लिए जब तक क्लास चलेगी तब तक अपनी क्लास में केवल खड़े रहना है, यह दंड दिया गया। और बंदो कालांतर में ज्ञात हुआ कि यह अपराध सूर्यकांत निराला ने नहीं किया था। यह अपराध सूर्यकांत निराला ने नहीं किया था। तो स्कूल के सर ने फिर सूर्यकांत से पूछा कि यह अपराध तो आपने नहीं किया था, फिर आपने स्वीकार कैसे किया? सूर्यकांत निराला बोले कि सर यह अपराध
मैंने तो नहीं किया था, लेकिन इसलिए स्वीकार कर लिया कि आप एक एक विद्यार्थी से पूछते और एक एक बच्चों से पूछते और उतना समय जो है हमारे ही अध्ययन का समाप्त हो जाता, हम उतना ही हमारे पढ़ाई का समय समाप्त हो जाता, और जो आज के दिन क्लास में विद्यार्जन करना चाहिए थी वह नहीं कर पाता। बंधुओं, यह उनके उत्तर थे। कहने का तात्पर्य, हम अपने विद्या क्षेत्र में हर बच्चे केवल एक निराला जी का बहुत अच्छा सबक ध्यान रखें। हम अपने देश के आर नारायण का एक बहुत बड़ा सबक रखें कि हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में के एक एक दिन का भी सबक जो है, एक एक दिन की शिक्षा भी कितना अपना मूल्यांकन रखते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जीवन हमारा यदि सदाचारमय रहेगा तो बंधु आपके लिए शांति रहेगी। यदि सदाचार ना रहा, अपने जीवन में दुर्व्यसन आ गए, यदि दुर्व्यसन आ गए तो इस बात का भी ध्यान रखें, उसी दिन से आपका घर जो है बर्बादी की यात्रा प्रारंभ कर देगा। आपके हर कदम बर्बादी के कदम होंगे। एक दिन आपके लिए विभिन्न प्रकार के और ऐसे हॉस्पिटल की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा जहां पर डॉक्टर लोग आपके लिए केवल शराब पीने से कैंसर की बीमारी, केवल बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पाउच से होने वाले कैंसर की बीमारी बतलाएंगे। बंधुओं, उस समय अपने परिवार के विषय में देखिए कि अपने परिवार के विषय में क्या गुजरेगी। उस वक्त माता पिता बहुत वृद्ध हो जाएंगे, वे कुछ भी करने के लायक नहीं रहेंगे, और ऐसे समय में यदि आप अस्वस्थ हो गए, जहां उनकी आपके प्रति उम्मीद थी, बहुत बड़ी आशा थी और भरोसा था, यदि आप ही बीमार हो गए तो सोच लीजिए उस परिवार का क्या होगा। क्यों ना क्यों, इसलिए हम आने वाली इन सारी घटनाओं के लिए आज ही विचार कर लें, आज ही सोच लें। दुर्व्यसन अथवा बुरी आदतें का पाठ केवल इतने रूप में ही हमको सीखना है। मानो आपकी स्लेट के ऊपर, एक स्लेट के ऊपर ABCD आदि आप पूरे के पूरे वर्ड लिख दीजिए, और दूसरी ओर आ इ ई आदि सारी वर्ण अक्षर लिख दीजिए, सारे के सारे अक्षर लिख दीजिए। लेकिन यदि सारे लिखी हुई अक्षरों के ऊपर केवल एक ढक्कन पानी पड़ करके हाथ फेर दिया जाए तो बंधुओं सारी इबारतें समाप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य, केवल एक दुर्गुण अपने जीवन के अनेकों अनेक गुणों के लिए समाप्त कर देते हैं, अनेकों अनेक अच्छाइयों के लिए समाप्त कर देते हैं। नींबू की एक बूंद, केवल नींबू की एक बूंद भरे हुए दूध में यदि डाल दी जाए तो एक बूंद जो है सारे दूध के लिए फाड़ देती है, सारे दूध के लिए समाप्त कर देती है। नींबू दूध के लिए फाड़ देता है, हमारी बुराइयां हमारे लिए खराब कर देती हैं, और कदाचित ऐसे ही बुरे लोगों की कहीं संगति हमारे ऊपर आ जाए तो बंधु समग्र जीवन के लिए तहस नहस कर देती हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया, और वह यह दिया कि चीनी बनो, नींबू मत बनो। नींबू मत बनो, चीनी बनो। नींबू जो होती है, नींबू जो होता है उसके लिए सबसे पहले अपनी खटास के कारण, केवल अपनी खटास के कारण कटना पड़ता है। जो दूसरों को
फाड़ने के लिए चलता है उसे पहले स्वयं ही फटना पड़ता है। और इसके साथ साथ जब नींबू कटता है तो लोग उसके लिए निचोड़ते हैं, और वो भी बेरहमी से ऐसा निचोड़ देते हैं कि उसमें जरा भी रस नहीं रह जाता है। और निचोड़ने के उपरांत बंदो उस नींबू के लिए फेंक दिया जाता है। उस नींबू के लिए फेंक दिया जाता है जो रास्ते पर चलने वाले राहगीरों के पैरों से कुचला जाता है। राहगीरों के पैरों से कुचला जाता है, जो दूसरे को बिगाड़ने के लिए चलता, जो दूसरे की जिंदगी को समाप्त करने के लिए चलता, बतलाते हैं पहले उसकी ही जिंदगी खराब हो जाती है। हम कभी किसी का बुरा ना सोचें। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं इसलिए कि नींबू की तरह कभी हम किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी के लिए बुरा ना देखें और बुरा ना सुने। महात्मा गांधी के तीन बंदर केवल यही सबक देते हैं कि एक अपने दोनों आंखों को ऊपर हाथ रखे हुए है, और वह सबक देता है कि आप कभी किसी के बुराइयों को ना देखें, बुरा ना देखें। एक बंदर अपने दोनों कानों के ऊपर हाथ रखे हुए है, और वह इस बात के लिए संकेत देता है कि बुरा ना सुने। और तीसरा बंदर अपने मुख पर हाथ रखे हैं, वह कहता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। ये महात्मा गांधी के तीन बंदर हैं। चौथा बंदर तो मेरा भी है, और मेरा बंदर वह अपने मस्तिष्क पर हाथ रखे हैं और वह बोलता है कि कभी किसी के विषय में बुरा मत सोचो। वह कहता है कभी किसी के विषय में बुरा मत सोचो। बंधो, इसलिए नींबू नहीं चीनी बनिए, नींबू नहीं चीनी बनिए। चीनी मीठी होती है, शक्कर मीठी होती है, और वह एक ऐसी मीठी होती है कि जिसकी संगति में जाती है उसको भी मीठा कर देती है, जिसकी संगति में जाती है उसको मीठा कर देती है, स्वयं अपने अस्तित्व को खो देती है, लेकिन बंधो सामने वाले के कीमत कर देती है और उसके महत्व को बढ़ा देती है। हम अपनी जिंदगी में एक ऐसी अच्छाइयों को धारण करें, एक ऐसी अच्छाइयां लाएं कि हमारी संगतें आमतौर पर हर व्यक्ति के लिए शांतिदायक बने, आनंददायक बने, दूसरे के लिए हितकारी बने। यदि ऐसा कुछ प्रयास किया गया तो समझ लीजिए आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल होगा। यदि ऐसे ऐसे हमारे अच्छे से अच्छे देशवासियों का विकास हुआ तो बंधो समझ लीजिए आने वाला देश भी आज से भी अधिक और अच्छी तरक्की करेगा। हम इस बात के लिए फिर से ध्यान रख लें कि हमारी हिंदी भाषा पर हमारे लिए गर्व करना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हमारे लिए हिंदी लिखने में और पढ़ने में भी कहीं परेशानी आने लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले में हमें हिंदी सीखने के लिए भी ट्यूशन लगानी पड़े और अलग से हिंदी सीखना पड़े। हम इस बात का पूरा ध्यान रखें। हमारे देश में अहिंसा और सत्य का एक ऐसा आविष्कार हो कि जिसके कारण से शांति आनंद की एक ऐसी वर्षा हो, जैसे कि पूर्व समय में भगवान महावीर स्वामी ने और नारायण श्री कृष्ण ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी। प्राणी मात्र की रक्षा करके, प्राणी मात्र की रक्षा करते करते देश में दूध और घी की नदी बहाई थी। हमें एक ऐसे दिशा में अपने कदम बढ़ाना पड़ेंगे। बढ़ते हुए कत्ल खाने जो निरंतर
हमारे पशुधन को कम करते जा रहे हैं। इस ओर भी हमको ध्यान देना होगा और उनकी रक्षा और उसके साथ साथ देश के विकास में इस दिशा में भी अपने कदम बढ़ाते हुए अपने देश की सुरक्षा करनी होगी। अपने श्रीमान और जी के द्वारा अपनी आदरणीय संस्कृति की सुरक्षा रखनी होगी। नाना प्रकार के दुर्व्यसनों से भी हमको बचना होगा ताकि हमारा जीवन भी सुखद रहे, अपना परिवार और अपना देश स्वतंत्र रहे, देश सुखद रहे। चूंकि हमको विश्वास है यदि हम अच्छे होंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे तो हमारा नगर अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे हमारा परिवार अच्छा होगा, हम अच्छे होंगे हमारा मोहल्ला अच्छा होगा। और यदि ऐसा नहीं किया तो बंधुओं केवल स्वप्न रह जाएंगे देश की उन्नति और विकास के लिए। इसलिए कदम हमको सबसे पहले बढ़ाना है तो केवल अपने आप से कदम बढ़ाना है, अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। यदि आप सुधर गए तो मुझे विश्वास है देश सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा। फिर कभी काला बाजारी, भ्रष्टाचार की बातें जो आज निरंतर सामने आती जा रही हैं वह नहीं आएंगी। और तो क्या हमारा